Hello everyone, welcome to the next lecture on the topic of vector spaces, and in today's lecture we will discuss the concept of quotient space. So आज के लेक्चर में हम क्वोशंट स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले ग्रुप थ्योरी में क्वोशंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा हुआ है, तो अब हम वेक्टर स्पेस में क्वोशंट स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे हमारे पास ग्रुप्स में कोसेट्स थे, तो इसी तरह से हम कोसेट्स का कंसेप्ट वेक्टर स्पेस के साथ एसोसिएट करने जा रहे हैं। सो इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस V over F, alright, then W under addition is a subgroup of the abelian group V under addition. आपको पता है कि अगर V एक वेक्टर स्पेस है तो V अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप होगा और W अंडर एडिशन उसका एक सब ग्रुप होगा। ठीक है, और क्योंकि V अबिलियन है तो उसका हर एक सब ग्रुप नॉर्मल होगा, तो आई कैन राइट W इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप V अंडर एडिशन। ओके, सो नाउ इफ you see U is any element of V, then W plus U and U plus W are the right coset and left coset of W in V, and actually these are the right coset and left coset of W determined by U. All right, and क्योंकि ये ग्रुप आपका नॉर्मल सब ग्रुप है तो W plus U और U plus W जो होगा वो सेम होगा for all U belonging to V. All right, now let this V by W, जैसे हम G by H, हम अगर H कोई नॉर्मल सब ग्रुप है G ग्रुप का तो हम G by H डिनोट करते, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं V by W. So V by W is a set of all cosets W plus U where U belongs to V. तो ये हमने एक सेट लिया V by W that contains all the elements of this type W plus U where U belongs to V. So that means V by W is a set of all cosets of W in V. V by W is the set of all cosets of W in V. Alright, तो ये जो सेट हमने बनाया, कोसेट्स का जो सेट बनाया है, ये सेट under some addition and scalar multiplication it will form a vector space, and that space would be called as quotient space. Alright, तो उस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम क्वोशंट स्पेस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। So the theorem that we are going to do here is, if W is a subspace of a vector space V over F and U and U dash are any two elements of vector space V, then W plus U is equal to W plus U dash if and only if U minus U dash belongs to W. ओके, तो हमने ग्रुप्स में एक रिजल्ट किया था कि HA is equal to HB, अगर ये दोनों कोसेट्स हैं then HA is equal to HB if and only if AB inverse belongs to H. तो उसी का एनालॉग रिजल्ट जो यहाँ पर वेक्टर स्पेस में हमारे पास है वो ये है कि W plus U is equal to W plus U dash if and only if U minus U dash belongs to W, where W is a subspace of vector space V. और हम यहाँ एडिशन की बात कर रहे हैं बिकॉज here W is a subgroup under addition, V is a group under addition and W is a subgroup of V under addition. So now अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि W plus U और W plus U dash इक्वल है, तो हमने क्या शो करना है, we have to show that U minus U dash belongs to W. So let I take this element small w plus u, this belongs to capital W plus u, where this small w belongs to capital W. तो W plus u में किस तरह के एलिमेंट होंगे, इसी तरह के एलिमेंट होंगे ना, an element of W plus u. Alright, so now W plus u, this element belongs to capital W plus u, but capital W plus u is equal to capital W plus U dash.
तो जो एलिमेंट कैपिटल W प्लस U का होगा वो एलिमेंट कैपिटल W प्लस U डैश में भी बिलोंग करेगा. सो आई कैन से दिस स्मॉल w प्लस u बिलोंग्स टू कैपिटल W प्लस U डैश. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि W प्लस U is equal to some W dash plus U dash where this W dash belongs to capital W. Now this implies I can write W minus W dash is equal to U dash minus U. But W minus W dash belongs to capital W. Why? Because W is a subspace of V. Okay. So W minus W dash कैपिटल W में बिलोंग करता है और W minus W dash किसके इक्वल है? U dash minus U के. So that means U dash minus U belongs to W. Or this also implies that U minus U dash belongs to W because W is a subspace. तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर W plus U W plus U dash के इक्वल है तो U minus U dash जो होगा वो W में बिलोंग करेगा. Now इसका कन्वर्स पार्ट. कन्वर्सली U minus U dash belongs to W. ये हमें पता है कि ये गिवन है U minus U dash belongs to W. We have to show that इस कन्वर्स पार्ट में हमने क्या शो करना है? We have to show that capital W plus U is equal to capital W plus U dash. Alright, now capital W plus U it is a coset and capital W plus U dash it is also a coset. तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल कब होंगे? जब ये सेट इसके अंदर कंटेंट दिखा दे हम और ये सेट इसके अंदर कंटेंट दिखा दे तो ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे. तो अब हम क्या करते हैं कि हम स्मॉल w प्लस u कैपिटल W प्लस u का कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं फॉर सम स्मॉल w बिलोंगिंग टू कैपिटल W. तो ये मैंने स्मॉल w प्लस u कैपिटल W प्लस u का एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया. नाउ दिस w प्लस u कैन बी रिटन एज, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं. आई कैन राइट इट लाइक दिस w प्लस u माइनस u डैश प्लस u डैश, ऐसे लिख सकते हैं w प्लस u माइनस u डैश प्लस u डैश. But this u minus u dash belongs to capital W. तो इसका मतलब I can write this like w dash plus u dash where this w dash is equal to w plus u minus u dash. अब u minus u dash भी w का एलिमेंट है, w भी w का एलिमेंट है, so that means w dash belongs to capital W. So that means this element W plus U belongs to capital W plus U dash. So W plus U belongs to capital W plus U dash. और W plus U हमने capital W plus U का कोई arbitrary element लिया था, तो I can write W plus U is contained in W plus U dash. इसी तरह से हम शो कर सकते हैं. Similarly we can show that capital W plus U dash is contained in capital W plus U, and from 1 and 2 I can write capital W plus U is equal to capital W plus U dash. Okay, so this is how we can prove this theorem. W plus U is equal to W plus U dash if and only if U minus U dash belongs to W. So now I am going to define the operation of addition and scalar multiplication on the elements of V by W. So if W is a subspace of a vector space V over F and V by W is the set of all cosets of W in V, then V by W is a vector space under these operations. Addition कैसे करेंगे? देखो V by W के कोई दो एलिमेंट ले लो. एक एलिमेंट हमने ले लिया W प्लस U, दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने W प्लस V. तो इनकी एडिशन किसके इक्वल होगी? इनकी एडिशन होगी W प्लस U प्लस V. सो कोसेट डिटरमिन्ड बाय U प्लस कोसेट डिटरमिन्ड बाय V
is equal to coset determined by u plus v for all uv belonging to capital V. So this is how we will define the addition. And स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम a कोई भी एक स्केलर एलिमेंट ले लेंगे फील्ड f से बिलोंग करता हुआ, और इसको जब आप एक कोसेट w प्लस u से मल्टीप्लाई करेंगे, so it will be equal to w plus au. So coset determined by u multiplied by a is equal to coset determined by a into u for all a belonging to f and u belonging to v. Now you can very easily prove that this set becomes a vector space under these defined operations. Okay? And ये जो set हमारे पास बना, जो vector space बना है, this set is called as quotient space. इसको क्या बोलते हैं हम? Quotient space. So the set of all cosets v by w forms a vector space under the operations that we are defined above, and this set is called as quotient space of v relative to w because it becomes a vector space, and this particular vector space is called as quotient space of v relative to w. Alright. So next we are going to discuss about the dimension of quotient space. Quotient space की dimension क्या होगी? So this is a very important theorem. If W is a subspace of a finite dimension vector space V over F, then dimension of V by W is nothing but equal to dimension of V minus dimension of W. So V by W की dimension क्या होगी? Dimension of V minus dimension of W. Alright. तो इसको देखो हम कैसे प्रूव करते हैं. मान लीजिए W की डायमेंशन m है. सपोज डायमेंशन ऑफ W इज m. तो इसके एक बेसिस में m एलिमेंट होंगे, एंड सपोज s इज इक्वल टू w1 w2 एंड सो ऑन wm. सपोज इट इज ए बेसिस ऑफ W. ऑलराइट. नाउ सिंस s इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W एंड हेंस ऑफ V, ये हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि S W का लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, तो ये V का भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा. देयरफॉर इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ V. तो इस जो सेट S है इसको एक्सटेंड करके हम V का बेसिस बना लेते हैं. सपोज इसमें हमने n एलिमेंट्स और ऐड किए, V1 V2 एंड सो ऑन Vn, और इन n एलिमेंट्स को ऐड करने के बाद ये V का बेसिस बन गया. सो देन डायमेंशन ऑफ V इज m प्लस n. तो W की डायमेंशन m थी, तो इसके बेसिस में m एलिमेंट्स हैं. इन m एलिमेंट्स के साथ हमने n वेक्टर्स और ऐड किए, तो ये V का बेसिस बन गया, एंड देयरफॉर डायमेंशन ऑफ V इज m प्लस n. नाउ वी विल कंसीडर ए सेट. दिस सेट विल कंटेन कोसेट्स ऑफ W in V determined by V1, V2 and so on Vn. तो ये सेट T मैंने लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं W प्लस V1, कॉमा कैपिटल W प्लस V2, कॉमा कैपिटल W प्लस V3 एंड सो ऑन कैपिटल W प्लस Vn. So these are all cosets of W in V determined by V1, V2 and so on up to Vn. Where V1, V2, Vn कौन से एलिमेंट हैं? ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने S के अंदर ऐड करके V का बेसिस बनाया था. S W का बेसिस था, उसमें हमने कुछ वेक्टर्स को ऐड किया, V का बेसिस फॉर्म किया. अब इन वेक्टर्स से V1, V2, Vn से जिनको हमने ऐड करके V का बेसिस बनाया है, इन वेक्टर्स से आप डिटरमिन होने वाले कोसेट्स लिख लीजिए. तो ये कोसेट्स का जो सेट बना, दिस इज सपोज T, एंड वी विल प्रूव दैट दिस T इज ए बेसिस ऑफ V बाय W, क्योंकि V बाय W में क्या है? कोसेट्स है. तो ये जो T सेट है ये भी कोसेट्स को कंटेन कर रहा है, तो ये V बाय W का एक सबसेट है. और हम कह रहे हैं कि ये जो V बाय W का सबसेट है ये एक्चुअली में V बाय W का बेसिस होगा. तो इसको प्रूव करने के लिए पहले हम प्रूव करेंगे कि T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है कि T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो हम क्या करते हैं कि जिस सेट को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट लेना है उस सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 रखते हैं. नाउ व्हाट अबाउट 0 ऑफ V बाय W? 0 किसकी? वेक्टर स्पेस की. अब नाउ व्हाट इज 0 ऑफ V बाय W? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ V बाय W. एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ V बाय W इज W. आपको अगर याद हो,
क्वोशिएंट ग्रुप्स में G बाय H की आइडेंटिटी क्या थी? H। ओके, सो यहां पर जो 0 है V बाय W का वो है W। ओके, एक्चुअली W प्लस 0 एलिमेंट, सो दैट बिकम्स W इटसेल्फ। सो अब हम क्या करेंगे, जो ये एलिमेंट्स हैं W प्लस V1, W प्लस V2 एंड सो ऑन W प्लस Vn, इनको स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया। सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स A1, A2 एंड सो ऑन An such that A1 into capital W plus V1 plus A2 into capital W plus V2 plus and so on An into capital W plus Vn is equal to W. What is W here? 0 of V by W। तो इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया। ओके, सो नाउ अगर ये सारे स्केलर्स 0 के इक्वल आ गए, 0 किसकी? फील्ड F की 0, तो अगर A1, A2, An सारे 0 के इक्वल आ गए तो ये सेट हमारा T जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया था, A1 इंटू W प्लस V1 क्या होगा? W प्लस A1 इंटू V1 प्लस एंड सो ऑन, इसी तरह से W प्लस A2 इंटू V2 एंड सो ऑन प्लस W प्लस An Vn इज इक्वल टू W। अब यहाँ पर वेक्टर एडिशन के हिसाब से इन सारी एलिमेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल W प्लस A1 V1 प्लस A2 V2 एंड सो ऑन प्लस An Vn इज इक्वल टू W। और W प्लस सम एलिमेंट इज इक्वल टू W ये तभी पॉसिबल है व्हेन दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू W इटसेल्फ, है ना। सो दैट मीन्स A1 V1 प्लस A2 V2 एंड सो ऑन प्लस एंड सो ऑन An Vn इज इक्वल टू W। दिस इज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है A1 V1 प्लस A2 V2 एंड सो ऑन An Vn बिलोंग्स टू W, ये एलिमेंट अगर W में बिलोंग करता है तो इट कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ W। और W का बेसिस क्या था? W1, W2 एंड सो ऑन अप टू Wm। तो अब हम A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन An Vn को लिख लेंगे W1, W2 एंड सो ऑन Wm के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। तो इस तरह से लिख लिया हमने। सारी जो टर्म्स है उनको एक साइड पे ले जाएंगे, A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस एंड सो ऑन An Vn प्लस माइनस ऑफ B1 इंटू W1 प्लस माइनस ऑफ B2 इंटू W2 प्लस एंड सो ऑन माइनस ऑफ Bn इंटू Wn इज इक्वल टू 0। अब ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया? इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S डैश। देखो S डैश में कौन कौन से एलिमेंट थे? W1, W2 एंड सो ऑन Wm, V1, V2 एंड सो ऑन Vn एंड इट इज ए बेसिस ऑफ V। तो इसका मतलब S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो अगर S डैश लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब जब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को, इसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इक्वल टू 0 रखोगे तो सारे स्केलर क्या होंगे? 0। सो दैट मीन्स A1 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन An इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो B1 इज इक्वल टू 0, B2 इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन Bn इज इक्वल टू 0। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज द सेट S डैश दैट कंटेन्स V1, V2 and so on Vm and then W1, W2 and so on Wn. Let me write here Vn and here Wm. So this set is linearly independent. Okay, so that means अगर A1, A2 and so on An ये 0 है, B1, B2 and so on Bn ये 0 है, so that means अगर A1, A2, An 0 आ गए तो हमारे पास जो ये हमने शुरू में यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन लिया था A1 इंटू W प्लस V1 प्लस A2 इंटू W प्लस V2 एंड सो ऑन An इंटू W प्लस Vn इज इक्वल टू 0 of V by W, and then we have got all scalars A1, A2 and so on An is equal to 0, so that means the set T is linearly independent। तो क्योंकि हमारे ये जो स्केलर्स हैं यहाँ पर A1, A2 एंड सो ऑन An ये सारे स्केलर 0 के इक्वल आ गए, तो दैट मीन्स द सेट T इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमने क्या शो करना है? अब हमने शो करना है कि जो T जो सेट है वो वेक्टर स्पेस या इस सेट V by W को स्पैन करता है। तो इसका मतलब अगर हम V by W का कोई भी एक एलिमेंट लें, वो एलिमेंट क्या होना चाहिए? दैट शुड बी एक्सप्रेसिबल एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ T। V by W का हर एक एलिमेंट T के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए।
सो मैं v बाय w का कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, v बाय w का एलिमेंट ले लिया w प्लस v, वेयर दिस v बिलोंग्स टू कैपिटल v, एंड क्योंकि कैपिटल v का बेसिस w1 w2 एंड सो ऑन wm, v1 v2 एंड सो ऑन vn है, तो v को हम इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. सो v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज c1 w1 प्लस c2 w2 एंड सो ऑन प्लस cm wm प्लस d1 v1 प्लस d2 v2 प्लस एंड सो ऑन dn vn, वेयर ऑल these ci's and di's are scalars. Now what is capital W plus v? Capital W plus v is capital W plus c1 w1 plus c2 w2 and so on cm wm plus d1 v1 plus d2 v2 and so on dn vn. अब इसमें से ये वाला जो एलिमेंट है c1 w1 प्लस c2 w2 प्लस एंड सो ऑन cm wm, ये कैपिटल W के बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन है, therefore this element must belong to W. So अगर ये एलिमेंट W में बिलोंग करता है तो W plus this element is equal to W only. So I can write W plus V is equal to W plus D1 V1 plus D2 V2 and so on Dn Vn. Now again using vector addition, I can write this as W plus D1 V1 plus capital W plus D2 V2 plus and so on capital W plus Dn Vn. And then using scalar multiplication, this can be written as d1 into capital W plus v1 plus d2 into capital W plus v2 plus and so on dn into W plus vn. So हमने जो एक आर्बिट्री एलिमेंट v बाय w का चूज किया था w plus v, उसको हमने कैपिटल W plus v1, कैपिटल W plus v2, कैपिटल W plus vn इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया. So because capital W plus v was arbitrarily chosen, so every element of capital V by W can be written as linear combination of elements of V by W, and therefore linear combination of elements of T. यहाँ पर क्या आएगा, every element of V by W can be written as linear combination of elements of T, therefore T spans V by W. अब T linearly independent भी है, T V by W को स्पैन भी करता है, therefore T is a basis of V by W. तो इसका मतलब what is dimension of V by W? Dimension of V by W is number of elements in T. अब T में कितने एलिमेंट्स थे देखिए, what was T? T was W plus V1, W plus V2 and so on W plus Vn. तो इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं. So dimension of V by W is equal to n. But n can be written as m plus n minus m, और हमने शुरू में ही देखा था कि डायमेंशन ऑफ v क्या है, m plus n, और डायमेंशन ऑफ w क्या है, m. So I can write dimension of v by w is equal to dimension of v minus dimension of w. तो अगर v आपके पास एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और w उसका कोई सबस्पेस है, then we will get v by w a quotient space, और उस quotient space की डायमेंशन क्या होगी, dimension of v by w would be equal to dimension of v minus dimension of w. ओके, सो अभी हमने जो ये थ्योरम किया, इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि if w is a subspace of v3 over r, v3 over r या इसको हम r3 over r भी बोल देते हैं. ओके, सो v3 over r generated by these two elements 1 0 0 and 1 1 0. तो w एक सबस्पेस है r3 का जो इन दो एलिमेंट से जनरेट होता है. नाउ वी हैव टू फाइंड v by w एंड बेसिस ऑफ v by w. तो हमें v by w और v by w का बेसिस फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहां पर जो w है, w इज स्पैन्ड बाय these two elements 1 0 0 1 1 0. इसका मतलब जो W की डायमेंशन होगी वो या तो 2 होगी या 2 से कम होगी, क्योंकि इसके स्पैनिंग सेट में दो वेक्टर्स हैं. तो अगर ये दो वेक्टर्स का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तो ये W का बेसिस हो जाएगा. अदरवाइज हम इसमें से कोई एक वेक्टर ले लेंगे तो वो W का बेसिस हो जाएगा. सो पहली बात तो देखिए कि जो ये सेट है 1 0 0 1 1 0, this set is clearly linearly independent. You can check it very easily. So this set is basis of W and therefore dimension of W is 2. So
dimension of W is equal to 2 because this set 1 0 0 and 1 1 0, this set is a basis of W. ये set W का basis है, और क्योंकि ये W का basis है तो it is linearly independent subset of V, hence it can be extended to form a basis of V, एंड इसको एक्सटेंड करके हमारे पास जो V का बेसिस आएगा, ये हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं पहले. सो आई एम राइटिंग बेसिस ऑफ V 1 0 0 1 1 0, और 1 1 0 के साथ हम एक और एलिमेंट ऐड करेंगे 0 0 1. So this is the basis of V. You can check it very easily. This is the basis of V. Now अब जैसा हमने थ्योरम में किया था, ये हमारे पास W का बेसिस है 1 0 0 1 1 0. इसको एक्सटेंड करके ये हमने V का बेसिस बना लिया. Now consider a set T. कैसे बनाएंगे सेट? इस सेट में हमने जो एलिमेंट हमने नया ऐड करके V का बेसिस बनाया है, उससे जनरेट होने वाला मुझे क्या चाहिए? उससे जनरेट होने वाला मुझे कोसेट चाहिए. अब एक ही एलिमेंट ऐड किया था यहाँ पे हमने, W के बेसिस में एक एलिमेंट ऐड करने से V का बेसिस बन गया, R3 का बेसिस बन गया. तो ये जो हमने इसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड किया है, इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला हमने कोसेट ले लिया. तो वो कोसेट क्या होगा? W प्लस 0 0 1. ऑलराइट. अब ये जो सेट है, दिस सेट, जैसा कि हमने थ्योरम में प्रूव किया, दिस सेट T इज ए बेसिस ऑफ V बाय W. तो ये जो सेट है वो V बाय W का बेसिस होगा. नाउ व्हाट इज V बाय W? देखो V बाय W में जो भी एलिमेंट होगा वो W प्लस 0 0 1 का मल्टीपल होगा. ठीक है, W प्लस 0 0 1 का मल्टीपल होगा. और W प्लस 0 0 1 का मल्टीपल मतलब क्या है? A प्लस W प्लस A इंटू 0 0 1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन. तो ये हम लिख लेंगे W प्लस A इंटू 0 0 1 वेयर A इज ए स्केलर. स्केलर मतलब रियल नंबर्स. सो व्हाट इज V बाय W? V बाय W इज contains elements of this type W plus 0 0 A, where A belongs to the set of real number. So all the elements of this type, all the cosets of this type W plus 0 0 A. So all the cosets generated by 0 0 A, where A is a real number, ये जो set है, this set is your quotient space V by W, और इस V by W का basis क्या है? W plus 0 0 1. So that's all for today's lecture. Thank you very much.